ना आई एम श्योर कि मैं अब आप सबको दिख रहा हूँगा. So today I am going to start with a very special topic of class 11 that is called bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement ये सेकेंड टर्म का आपका फर्स्ट टॉपिक है. तो आज की क्लास में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. बैंक रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट का सेशन ये है. नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे सो दैट कि आराम से आप कॉन्सेप्ट समझें पहले एंड फिर उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. So today I am going to start with the bank reconciliation statement. So what is the bank reconciliation statement? So actually it is a statement which is prepared to reconcile the differences made either in the cash book or in the passbook on a certain period of time. So first of all we need to understand what is a statement. What is a statement? So it is a statement. So when I say it is a statement, so it is not an account. And when it is not an account, so we are not going to write any debit or credit here. So it is just a statement, not an account, which is prepared to reconcile the differences made either in the cash book or in the passbook on a certain period of time. So few mistakes we made in the cash book and few mistakes we made in the passbook on a particular specific period of time. So basically we are going to focus on these three areas, that is period of time, the errors made in the cash book and errors made in the passbook. So what are the reasons of differences? As I mentioned, the first reason is time gap, second reason is errors and omission made in the cash book, third reason is errors and omission made in the passbook. But before going to start with this, मैं आप लोगों को पहले बेसिक कुछ बातें बताना चाहता हूँ about the cash book and passbook. So see, we are talking about, हम बात कर रहे हैं cash book की और passbook की. Cash book और passbook. Cash book का जो receipt side होता है उसको हम debit side बोलते हैं. Debit side of cash book is the receipt side और कैश बुक का जो क्रेडिट साइड होता है इसको हम पेमेंट साइड बोलते हैं. पासबुक का ऑपोजिट होता है. इसका जो डेबिट साइड होता है दैट इज कंसीडर्ड एज अ पेमेंट साइड और इसका जो क्रेडिट साइड है दैट इज कंसीडर्ड एज अ रिसीट साइड. तो कैश बुक का डेबिट साइड एंड पासबुक का क्रेडिट साइड आर द रिसीट साइड और यही फेवरेबल बैलेंस होते हैं. क्या होते हैं ये? फेवरेबल बैलेंस होते हैं. दिस इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस. एंड कैश बुक का क्रेडिट साइड एंड पासबुक का डेबिट साइड इज कंसीडर्ड एज एन अनफेवरेबल बैलेंस. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और जब भी मैं कैश बुक बोल रहा हूं तो डोंट गेट कंफ्यूज. कैश बुक में कैश कॉलम बैंक कॉलम की बात नहीं कर रहा. जब भी मैं बात कर रहा हूं कैश बुक की, सो मेरा सिर्फ मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को ही अपने पासबुक से कंपेयर करते हैं. अब देखिए आपने दो बुक्स बना ली, कैश बुक और पासबुक. कैश बुक और पासबुक एक ही अकाउंट जो दो लोग मेंटेन करते हैं. कैश बुक इज एब्सोल्युटली मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन एंड पासबुक ऑन हिज बिहाफ इट इज मेंटेन्ड बाय द बैंकर्स. एक ही अकाउंट के हम बारे में बात कर रहे हैं. तो सपोज एक अकाउंट का बैलेंस 1 लाख है तो दूसरे अकाउंट का भी बैलेंस 1 लाख होना चाहिए. बट कई बार ये दोनों बैलेंस सेम नहीं होते हैं because it is maintained by the two different persons. Cash book, as I mentioned, it is absolutely maintained by the businessman and passbook is maintained by the bankers on again behalf of the businessman. क्योंकि जो passbook जो account holder है वो bank businessman. So I'm talking about the time gap. Let me take an example on this. Just take an example.
check received and deposited in the bank on 27th September but not yet cleared or credited by the bank up to 30th September amounted to rupees say 10,000 rupees. So इसके लिए वर्किंग नोट्स बनाएंगे एंड वर्किंग नोट्स में कैश बुक, पासबुक एंड ऑन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 30th सितंबर इसको बेस लेके करेंगे। कंसर्न ये है कि 30th सितंबर को से पहले कैश बुक और पासबुक में सेम एक्शन होना चाहिए। मतलब सपोज जैसे मैंने कैश बुक चेक में एक चेक रिसीव करा कस्टमर से और डिपॉजिट कर दिया मैंने बैंक में, तो कैश बुक में हम इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे। तो सेम एक्शन हैज टू बी टेकन इन द पासबुक आल्सो। लेकिन पासबुक में 30th सितंबर तक ये चेक नहीं पहुंचा है। So now at this point of time, if I compare my cash book with the passbook, so I find my cash book is comparatively increased by 10,000, and at the same time if I compare my passbook with the cash book, so I find कि 10,000 से मेरा पासबुक कम है। क्यों कम है? क्योंकि अभी क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एडेड। और एक लॉजिक और समझ लीजिए, इफ समथिंग हैज टू बी एडेड एंड नॉट एडेड येट, इट मींस इट हैज सब्ट्रैक्टेड इन योर अकाउंट। दोनों जगह ये 10,000 के बैलेंस ऐड होने चाहिए थे, एक जगह ऐड हुआ लेकिन दूसरी जगह नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इफ यू कुड कंपेयर द फर्स्ट विद द सेकंड, जहां ऐड नहीं हुआ है ये नेगेटिव शो करेगा, और इसका मतलब है कि ये एडेड नहीं है तो ये क्या है? सब्ट्रैक्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये है हमारा टाइम से गैप से प्रॉब्लम, जो टाइम से रिलेट करता है। नेक्स्ट वन इज एरर्स एंड ओमिशन मेड इन द कैश बुक। कई बार मिस्टेक जो होता है वो कैश बुक से ही होता है एंड ओवरऑल हमारा बैलेंस मैच नहीं करता है। आई लाइक टू टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, check deposited in the bank amounted to rupees 5,000 omitted to record in the cash book, omitted to record in the cash book। अब आप देखें कि हम कैश बुक और पासबुक, यही हमारे दो मेन बुक्स हैं। तो हमने क्या किया, एक चेक रिसीव करा और डिपॉजिट कर दिया बैंक में। बैंक का मतलब है पासबुक। सो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक ने हमारे अकाउंट को 5,000 रुपीज से इंक्रीज कर दिया, लेकिन कैश बुक में हम ओमिट कर दिया, हम भूल गए रिकॉर्ड करना। तो जैसे मैंने बताया, इफ समथिंग हैज टू बी एडेड एंड नॉट एडेड, इट मींस इट इज सब्ट्रैक्टेड। तो यहां से क्या है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूं प्रॉब्लम्स की, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम समझ जाएंगे, सॉल्यूशन फटाफट निकल जाएगा। लेकिन हर स्टेप में सॉल्यूशन की बात नहीं करते, पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम इज द बेस्ट टीचर। प्रॉब्लम समझेंगे तो उसको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और उसको हम अपने हिसाब से और समझ सकते हैं, और बेस्ट अपना जो बेस्ट ऑफ पॉसिबल एफर्ट है वो उसमें लगा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है मेरा मेड इन द पासबुक वाला। इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक।
interest wrongly credited in the passbook. Interest wrongly credited in the passbook. Interest wrongly credited in the passbook. इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे। और मैं एक अमाउंट भी ले लेता हूँ, सपोज 2000 का। बाय मिस्टेक बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 2000 रुपये ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है कि बैंक में पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब प्लस होता है और डेबिट होने का मतलब माइनस होता है, और कैश बुक में डेबिट होने का मतलब प्लस होता है और क्रेडिट होने का मतलब माइनस होता है। सो इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली का मतलब है ये सिर्फ एक्शन पासबुक में लिया गया है, कैश बुक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये 2000 रुपीज पासबुक में ऐड हो गया, बट द सेम इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। मैंने अभी समझाया कि सपोज इफ समथिंग हैज टू बी एडेड एंड नॉट एडेड येट, इसका मतलब है कि ये 2000 से सब्ट्रैक्ट होगा। सपोज इसमें समझने में आपको दिक्कत हो तो आप इसका एक बेबी स्टेप भी ले सकते हैं, एक इजी स्टेप भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेम अकाउंट जो बिजनेसमैन बनाता है, वही बिजनेसमैन का अकाउंट जो बिजनेसमैन अपने बुक्स में प्रिपेयर करता है, वही उसके बिहाफ में बैंकर्स बनाता है पासबुक में। तो दोनों के बैलेंसेस सिमिलर होने चाहिए, राइट। तो मैंने ये एक सिमिलर बैलेंस ले लिया कि दोनों का बैलेंस मान लीजिए 1 लाख रुपए का बैलेंस है, ये बैलेंस है। अब इस ट्रांजैक्शन में वो कंसीडर करते हैं इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹2000। तो इस ट्रांजैक्शन के आने के बाद क्या हो गया कि पासबुक में 2000 रुपए से क्रेडिट आ गया, बट इट इज नॉट कंसीडर्ड हियर इन द कैश बुक। तो पासबुक का बैलेंस चेक कर लें तो आपका बैलेंस कितना हो गया, 1,02,000 का हो गया। सिंस कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस स्टिल 1 लाख रुपीस का है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू कुड कंपेयर योर पासबुक विद द कैश बुक, so you find your passbook is increased by 2000, and at this time if you compare your cash book with the passbook, so you find your cash book is declined by 2000। तो वही स्टोरी आ गई, if something has to be added and not added yet, it means it is subtracted। ठीक है। तो अब देखें कि जो प्रॉब्लम्स हमने देखा है उसको प्रॉब्लम्स को बुक्स में हम कैसे एरर को प्रेजेंट करते हैं। these are the main errors, these are the main errors जिस एरर्स की हम अभी बात करते हैं। इस एरर को लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इस एरर्स को लर्न करने का तरीका बहुत है डिस्को। डिस्को इज द राइट वर्ड फॉर दिस, डिस्को। सो वेयर डी स्टैंड फॉर डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक। इसमें मैंने दोनों तरह की बात करी है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब कैश बुक में करेक्टेड प्लेस्ड है बट पासबुक में नहीं हुआ है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव पार्ट भी है जहां ये ओमिट हो गया कैश बुक में रिकॉर्ड होना, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट हो गया। तो हर चीज के बच्चों, एज बिकॉज वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग, हर पहलू के, हर पार्ट्स के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी दो एरर्स इसमें से निकल सकता है। सिमिलरली इशूड चेक, इशूड का मतलब होता है विड्रॉ करना। So issued check but not yet presented for payment in the passbook। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है, issued check presented in the passbook but omitted to record in the cash book। ये दूसरी मिस्टेक इसमें से हम निकाल सकते हैं जो कैश बुक के पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसमें एक ही है सब्सक्रिप्शन पे, आपने कोई भी सर्विसेज अवेल कर रखी है, चाहे सपोज इंश्योरेंस है या कोई भी सर्विसेज है जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि दे कैन मेक द पेमेंट ऑन योर बिहाफ, तो बैंक विल मेक द पेमेंट बट सम टाइम दे विल इन्फॉर्म यू इन अ लेटर स्टेज, थोड़े टाइम बाद करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन पे बैंक आपका पासबुक कम हो गया बट इट हैज नॉट येट अपीयर्ड इन द कैश बुक, तो कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक। आज के टाइम हम बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन पे बिजनेस करते हैं, और मान लो कि आप किसी आउट स्टेशन में आपने परचेज या सेल करा है, नॉर्मली सेल की बात करते हैं, तो उन्होंने पेमेंट करना है, कस्टमर से आपने पेमेंट रिसीव करना है। कस्टमर ने आपके अकाउंट में और उसी ब्रांच में, सपोज इफ यू आर हैविंग एन अकाउंट विद अ बैंक, सपोज ICICI बैंक में है और वहाँ भी ICICI बैंक ऑपरेशनल है, तो आपके अकाउंट में जाके
वहां उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। तो आपका अकाउंट में जैसे आपके बिहाफ में कुछ पैसे आएंगे तो आपके अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। बट द सेम इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू अस, इसलिए हमारे अकाउंट में वो कैश बुक में वो एडेड नहीं। नेक्स्ट है अदर्स एरर्स एंड ओमिशन मेड ईदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक। तो आप देखो तो ये जो DISC है, डिस्क जो है, ये बेसिकली टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो मैंने पहला बताया टाइम गैप वाला प्रॉब्लम, उसी को ये यहाँ बताता है। और ये जो है, जो मैंने सेकंड और थर्ड प्लेस पे बताया, अदर्स एरर्स ओमिशन मेड ईदर इन द कैश बुक और इन द पासबुक, तो ये आपके सेकंड और थर्ड वाले जो एरर है कैश बुक और पासबुक वाले, उस एरर को बताता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको करने चाहिए? तो पहला स्टेप यू हैव टू डू दिस। स्टेप 1, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिस डेट का भी होगा तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन या एज एट उसके बाद ये आपके कॉलम, ये प्लस कॉलम, प्लस रुपीज, माइनस रुपीज, पर्टिकुलर्स। So if the starting point is the favorable balance, if the starting point is the favorable balance, तो आपको प्लस कॉलम में लिखना चाहिए। और सपोज स्टार्टिंग पॉइंट अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है या गिवन है, तो आप उसको माइनस कॉलम में लिख देंगे। फेवरेबल का मतलब मैं समझा चुका हूं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस इज अ फेवरेबल। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस of passbook is favorable। और मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको पता है कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज एन अनफेवरेबल बैलेंस एंड पासबुक डेबिट बैलेंस इज एन अनफेवरेबल बैलेंस। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, फेवरेबल होगा तो प्लस कॉलम में एंड अनफेवरेबल होगा तो माइनस कॉलम में होगा। सेकंड स्टेप है इसका, डू द वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट्स कैसे बनेगा ये मैंने आपको सिखाया है। डू सेकंड स्टेप इज स्टेप 2, सेकंड स्टेप डू द वर्किंग नोट्स। तो डू द वर्किंग नोट्स, ये देखिए बहुत सिंपल सा अभी हमने सीखा है वर्किंग नोट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है क्योंकि ये वर्किंग है। और वर्किंग आपने कर लिया, इसका मतलब ये करेक्ट होगा ही होगा। सो डू द वर्किंग नोट्स। आपको वर्किंग नोट्स में क्या करना चाहिए, वही जो रीजंस हैं मिस्टेक होने के। अब वो कौन कौन से रीजन है? एक तो कैश बुक, दूसरा पासबुक, और जिस पर्टिकुलर पीरियड में बना रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 30 सितंबर, तो इस पर्टिकुलर पीरियड टाइम, तो आपको टाइम गैप आपने इसलिए टाइम लिख दिया। कैश बुक में एरर्स हो सकता है इसलिए कैश बुक को लिख दिया, पासबुक में एरर्स हो सकता है इसलिए आपने पासबुक को लिख दिया। और इसमें जैसे कि एग्जांपल बात कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द पासबुक। तो चेक जब डिपॉजिट करेंगे और पासबुक में प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000 से एक चेक डिपॉजिट हो गया और कैश बुक में डेबिट साइड में हमने इसको प्लस कॉलम में दिखा दिया। इट इज नॉट येट प्रेजेंटेड इन द पासबुक, तो पासबुक में ये अभी भी क्या है, माइनस है। एक और एग्जांपल है, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द पासबुक। 5,000 का एक वर्थ का चेक है जो हमने इशू करा हुआ है, कैश बुक से माइनस हो गया, बट इट हैज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द पासबुक, सो इट इज स्टिल एडेड। यहां से तो माइनस हो गया, पेमेंट यहां से मिल चुकी है, हमने जैसे ही चेक दिया
कैश बुक हम बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाता है, तो इट इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन। तो जैसे चेक हमने दिया, हमने अकाउंट को डिक्लाइन कर दिया बिकॉज दिस अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द क्रेडिटर। लेकिन ये अमाउंट अभी तक क्रेडिटर बैंक नहीं जा पाया है और उसने जैसे प्रेजेंट नहीं करा चेक, तो अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हो पाई है। सो इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड बट नॉट येट सब्ट्रैक्टेड येट, इसलिए ये स्टिल एडेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप मैं बताता हूं। थर्ड स्टेप हमारा फाइनल स्टेप है। सपोज इफ द स्टार्टिंग बैलेंस इज ईदर द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। स्टार्टिंग में जो आपका बैलेंस यहां दिया हुआ है वो या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक। तो जस्ट इग्नोर द कैश बुक एंड फॉलो द पासबुक। इसका रिवर्स, सपोज स्टार्टिंग बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, देन इन दिस कंडीशन इग्नोर पासबुक एंड फॉलो द कैश बुक करने की जरूरत है। यही हमारा थर्ड स्टेप है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। इसको एक बार रिवाइज करिए एंड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इससे बहुत सारा हेल्प हमें मिलने वाला है क्वेश्चंस में। डेफिनेटली प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन हाँ उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अनबीटेबल होता है। कॉन्सेप्ट एक बार हमारा क्लियर हो जाए फिर हम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।